graduate group. Now we are starting with the next section and we'll see questions which are based on what? Quartile deviation and what? Semi-interquartile range. So now we start with the next question, that is question number 6. Okay? So question जो दिया गया है वो है find quartile deviation for the following set of 11 bottles of 1 liter of what? Energy milk for 11 days by a dealer. The values are 34, 37, 31, 25, 40, 45, 50, 42, 39, 47 and what? 57. So यहाँ पे since this is question which is based on raw data and it is based on what? Quartile deviation. Quartile deviation के लिए we want value of what? Q3 and what? Q1. And in order to get value of Q3 and Q1, we require the given data to be arranged in what? Ascending order. So सबसे first step आ जाएगा यहाँ पे arranging the given data in ascending order. So यहाँ पे डेटा जब ascending order में arrange करते हैं, so first value which will come is what? 25. So पहला value जो है वो 25 है. Next value over here is after 25 it is 31. Next value जो है वो है after 31 it is 34. After 34 it is 37. 37 के बाद जो next value है वो है 39. So after 39 next value which is there is 40. 40 के बाद next value जो है वो है 42. 42 के बाद next value जो है वो है 45. So after 45 the next value is 47. फिर 50 दिया है and उसके बाद 57. So यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and what? 11. So यहाँ पे I'll see my value of n as what? 11. So यहाँ पे जब value of n 11 है यहाँ पे, अब मुझे value चाहिए of what? Quartile 1 and what? Quartile 3. क्योंकि मुझे value ढूंढना है of what? Quartile deviation. So यहाँ पे इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे in general पहले मैं लिखता हूं QI. So जब मैं यहाँ पे QI लिखता हूं इसका मतलब ये हो जाएगा value of I into n plus 1 upon क्या आएगा? Fourth observation. ये general terms में लिखा. Now we want value of Q1 तो यहाँ पे लिखा मैंने Q1. So ये हो जाएगा value of I के जगह पे अब आ जाएगा इस what 1, n के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा इस what 11 plus 1 upon क्या आएगा 4 observation. So we say this is equal to value of ये हो जाएगा 1 bracket 11 plus 1 जो है वो होता है 12 upon 4 हो जाएगा. So we say 12 by what 4 observation. So this is equal to value of यहाँ पे मैं लिखूंगा 12 by 4 मतलब ये हो जाएगा third. So we say it is third observation. Now I need to check what is my third observation. तो मैं बोलूंगा first, second और ये क्या हो जाएगा third observation. So ये जो third observation है ये third observation का value है 34. So यहाँ पे मेरा value of Q1 जो है ये आ जाएगा as what 34. अब मुझे quartile 3 भी ढूंढना है. So अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ Q3 which is equal to value of 3 into n plus 1 upon क्या आएगा fourth observation. So जब मैं ये वैल्यू लिखता हूं यहां पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट 11 plus 1 upon क्या आएगा fourth observation. So value of this 11 plus 1 upon fourth observation जो है वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट ये हो जाएगा 12 upon 4. So 12 by 4 वापिस यहां पे लिखेंगे. So ये वैल्यू हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3 ब्रैकेट में अरे ये 12 by 4 मतलब 3 आएगा तो इधर लिखूंगा थर्ड. बट जब ये 3 into 3 होगा तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ आई से नाउ 9th ऑब्जर्वेशन. अब मुझे चेक करना होगा कि मेरा 9th ऑब्जर्वेशन ये डेटा में क्या है. सो यहाँ पे आई नीड टू चेक माय 9th ऑब्जर्वेशन. सो आई से 9th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू इज व्हाट 47. सो यहाँ पे Q3 का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 47 एंड लास्ट में QD पूछा है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन. सो आई से इट इज Q3 minus Q1 upon 2. सो इसका वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट
47 minus 34 divide by 2. So अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि 47 minus 34. So इसका आंसर आता है what 13 and 13 divided by क्या आएगा 2. So we write it as what 6.5. So यहाँ पे we write it as what 13 by 2 which is equal to क्या आएगा 6.5. So ये हो गया हम लोग का value of what quartile deviation. So with this question is done. Now we start with the next question, that is question number 7. So यहाँ पे question number 7 में the question is calculate the quartile deviation and its coefficient from the following figure of daily expenses in rupees of 7 students. So यहाँ पे the values which are given is 19 दिया है, 21, 35, 40, 26, 15 and what 10. So ये set of values दिया. Again I see the data which is given is what raw data. So we start again this question with what arranging the given data in ascending order. So the ascending order is, तो मैं देखूंगा यहाँ पे सबसे छोटा जो वैल्यू है वो है 10, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 12, सॉरी 15 वैल्यू है, 15 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 19, आफ्टर 19 द नेक्स्ट वैल्यू इज व्हाट 21, 21 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 26, 26 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 35 है एंड 35 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 40. सो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट 7. सो इधर अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू है n है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसका वैल्यू क्या है 7. सो ये n का वैल्यू 7 है. सो अब यहाँ पे वापस मुझे क्वार्टाइल डिविएशन ढूंढना है एंड मुझे उसका कोएफिशिएंट भी ढूंढना है यहाँ पे. सो आई नीड टू राइट इट एज QI जनरल टर्म्स में. तो इधर मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ I into n plus 1 अपॉन क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे Q1 ढूंढते वक्त मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू ऑफ 1 into, अभी n की जगह पे क्या आएगा, तो n की जगह पे आई से माई वैल्यू ऑफ n इज 7, तो ये हो जाएगा 7 plus 1 बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे 7 plus 1 मतलब ये हो जाएगा 8 by 4 मतलब ये हो जाएगा मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन. So we can write it as what second observation. So what is the second observation over here? So we say it is what 15. So ये हो गया मेरा value of what Q1. So मुझे यहाँ पे Q1 मिल गया. वैसे ही मुझे क्या ढूंढना है Q3, क्योंकि क्वार्टाइल डिविएशन के लिए we want Q1 and what Q3 का वैल्यू. So Q3 is equal to, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा वैल्यू ऑफ 3 into n plus 1, तो n की जगह पे क्या आएगा 7, 7 plus क्या आएगा 1 अपॉन क्या आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो ये वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ 3 into, अरे 7 plus 1, 7 plus 1 क्या आएगा 8, 8 अपॉन 4 किया तो ये क्या होता है 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2. सो ये हो जाएगा 3 into 2 मतलब ये हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ, तो मैं बोलूंगा 6th ऑब्जर्वेशन. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन ओवर हियर? सो 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू यहाँ पे जो है वो है 35. तो यहाँ पे मुझे Q1 मिल गया, यहाँ पे मुझे Q3 मिल गया. सिंस मुझे Q1 मालूम है और Q3 मालूम है, सो अब मैं ढूंढ सकता हूँ वैल्यू ऑफ व्हाट QD, दैट इज क्वार्टाइल डिविएशन. ये हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन क्या आएगा 2. सो इसका वैल्यू होता है व्हाट 35 माइनस 15 अपॉन 2. इसका आंसर हो जाएगा एज व्हाट 20 by 2 which is equal to क्या आएगा 10. सो क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया. अब सेकेंड पार्ट जो है वो है कोएफिशिएंट. सो यहाँ पे मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. सो इसका वैल्यू हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. सिंस Q3 एंड Q1 ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, Q3 एंड Q1, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा एज व्हाट 35 माइनस 15 अपॉन 35 प्लस 15. ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 20, ये वैल्यू हो जाएगा एज व्हाट 50. 20 upon 50, इसको कैलकुलेट किया, we say the answer for this is what 0.4. Whether this question is done, we make a note of this.
So now we start with the next question, that is question number 8. So यहाँ पे question में दिया है calculate the quartile deviation and its coefficient from the following. So यहाँ पे value of x दिया है, तो मैं यहाँ पे ना x का value लिखता हूँ और value of f लिखता हूँ. x मतलब यहाँ पे the observations are given and f मतलब उसके frequencies दिए. So यहाँ पे जो observation है उसका value है as what? 43, 44, 45, 46, ठीक है, ऐसा है 49 तक. So यहाँ पे आएगा 47, 48, 49. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये x में इंडिविजुअल वैल्यूज है. सो ये डेटा को मैं बोलूंगा एज व्हाट? डिस्क्रीट डेटा. सिंस दिस इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट डेटा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बाद एक एक्स्ट्रा कॉलम आएगा ऑफ CF. यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस देन टाइम. ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज लिखते हैं. तो फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू दिया गया है वो है 10. 10 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 20. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 17. उसके बाद का वैल्यू जो दिया गया है वो है 20. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 15. फिर दिया है 10 एंड लास्ट में दिया है व्हाट? 8. सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ये हो जाएगा 10. अब 10 प्लस 20 तो ये क्या होगा? 30. 30 प्लस 17 तो 30 प्लस 17 क्या हो जाएगा? 47. 47 प्लस 20 मतलब ये हो जाएगा 67. 67 एंड 15 तो ये हो जाएगा एज व्हाट? 82. 82 और 10 किया तो ये हो जाएगा 92. 92 और 8 किया तो ये हो जाएगा एज 100. सो ये जो 100 आया ये है मेरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड जिसको मैं डिनोट कर सकता हूं एज व्हाट? समेशन f या फिर n. सो यहां पे मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू 100. अब मुझे यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन ढूंढना है, इसलिए मुझे Q3 का वैल्यू चाहिए और Q1 का वैल्यू चाहिए. बट बिफोर दैट आई राइट द स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला QI मतलब ith क्वार्टाइल. सो ये ith क्वार्टाइल का वैल्यू फॉर डिस्क्रीट टाइप ऑफ डेटा इज वैल्यू ऑफ I इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन. सो ये वैल्यू ढूंढने के लिए अब Q1 का वैल्यू चाहिए एंड Q3 का वैल्यू चाहिए. तो Q1 के लिए I के जगह पे 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ, यहां पे I के जगह पे आएगा एज व्हाट? 1. उसके बाद n के जगह पे यहां पे मैं लिखूंगा एज व्हाट? 100 प्लस 1 अपॉन क्या लिखूंगा? 4 ऑब्जर्वेशन. सो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 इंटू ये 101 अपॉन 4 हो जाएगा. 101 अपॉन 4. सो अगर हम चेक करते हैं 101 डिवाइड बाय 4, सो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? 25.25. तो इसके जगह पे अब मैं लिखूंगा 25.25 ऑब्जर्वेशन. अब 1 इंटू दैट वैल्यू मतलब वो सेम वैल्यू आएगा, तो यहां पे हो जाएगा वैल्यू ऑफ 25.25 ऑब्जर्वेशन. एंड अगर हम यहां पे देखते हैं कि 25.25 ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई करेगा, तो इट लाइज अंडर दिस ग्रुप, दैट इज 10 के बाद जो भी डेटा है टिल 30, ये सारा किस में लाई करेगा? तो मैं देखूंगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ x. सी तो यहाँ पे मैं इसको मार्क करूंगा, ये मार्क करूंगा एंड यहाँ पे जो मेरा वैल्यू ऑफ x है, ये x का जो वैल्यू है दैट बिकम्स माय वैल्यू ऑफ व्हाट? Q1. सी बहुत बार गलती से ना लोग ये लिख देते, वी नीड टू राइट वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. x का जो वैल्यू है तो यहाँ पे ये आ जाएगा एज व्हाट? 44 Q1 का वैल्यू. सो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 44. सो Q1 मिल गया. अब नेक्स्ट पार्ट जो हमने को स्टार्ट करना है वो है Q3 का वैल्यू ढूंढना है. सो Q3 का वैल्यू ढूंढने के लिए वी राइट इट एज व्हाट? वैल्यू ऑफ, यहां पे क्या लिखूंगा? I के जगह पे आ जाएगा 3 ब्रैकेट, n के जगह पे क्या आएगा? 100. तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 100 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? 4 ऑब्जर्वेशन. सो ये हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू ऑफ 3. अब ये 101 अपॉन 4 आएगा एंड 101 अपॉन 4 का वैल्यू हमने अभी देखा, इट इज 25.25 ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 25.25 ऑब्जर्वेशन. जब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 इंटू 25.25 ऑब्जर्वेशन है तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 75.75 ऑब्जर्वेशन. So now we need to check is 75.75th observation कहां पे लाई करेगा. So where does this value lie? So यहाँ पे 67 है, ये 82 है, तो 75.75 मतलब वो लाई करेगा यहाँ पे. एंड मैं बोलूंगा ये जो कंडीशन है, तो this gives me my value of what?
अब वापस से इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x दिख रहा है, दिस बिकम्स माय वैल्यू ऑफ व्हाट Q3. सो यहां पे मैं लिखूंगा Q3 इज इक्वल टू, सो वी राइट दैट एज व्हाट 47. सो ये Q3 मिल गया, ये Q1 मिल गया. अब मुझे ढूंढना है यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन, तो मैं लिखता हूं QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन क्या आएगा 2. सो वी से इट इज 47 माइनस क्या आएगा 44 अपॉन क्या आएगा 2. सो आंसर फॉर दिस इज व्हाट इज दिस वैल्यू, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 1.5. सो ये मिल गया मुझे क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू. अब मुझे उसका कोएफिशिएंट भी ढूंढना है. सो यहां पे मैं लिखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ क्या लिखता हूं QD. व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, तो अब लिखेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. सो ये वैल्यू आ गया. व्हाट इज Q3 माइनस Q1, तो मैं लिखूंगा 47 माइनस 44 अपॉन 47 प्लस 44, इसका वैल्यू आ जाएगा 3. अब 47 प्लस 44 हमको देखना है. तो 47 प्लस 44 इसका वैल्यू देखते हैं तो क्या आ रहा है, तो वी गेट द वैल्यू एज व्हाट 91. सो 3 डिवाइड बाय 91 करना है. 3 डिवाइड बाय 91 किया, वी गेट द आंसर फॉर दिस एज व्हाट 0.0, फिर आ रहे 3296, ये वैल्यू है. सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट क्वार्टाइल, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. ये क्वेश्चन खत्म हुआ. नाउ वी स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 में वी सी व्हाट डेटा इज गिवन. ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन बोला है. क्या बोला है, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा. वीकली इनकम इन रुपीस दिया है. नाउ वीकली इनकम का वैल्यू, तो एक कॉलम बन जाएगा यहां पे वीकली इनकम का. ठीक है, ये वीकली इनकम का जो वैल्यूज दिया है दैट इज इन रुपीस दिया है, तो यहां पे मैं लिखता हूं इन रुपीस, ये वैल्यू दिया है. अब वैल्यूज जो दिए गए हैं, ये वैल्यूज को हमको समझना है. इट इज 1500 टू 1700, 1700 टू 1900. मतलब अगर मैं ये डेटा रीड करता हूं तो दिस इज व्हाट, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये कंटिन्यूस डेटा है. सिंस दिस इज कंटिन्यूस डेटा, तो यहाँ पे पहला कॉलम मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज व्हाट 1500 से लेके 1700. नेक्स्ट वैल्यू क्या दिया, 1700 टू 1900. ऐसा वैल्यू दिया है टिल 2500 टू 2700. तो अब देखते हैं इसके बाद 1900 टू 2100, फिर 2100 टू क्या आएगा 2300, 2300 टू क्या आएगा 2500, 2500 टू क्या आएगा 2700. सो यहाँ पे ये लास्ट वैल्यू दिया गया. उसके बाद एक कॉलम दिया गया है व्हाट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. सो यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिखा, वी से दिस इज नथिंग बट व्हाट फ्रीक्वेंसी. अगेन दिस इज रिलेटेड टू व्हाट ग्रुप डेटा. सिंस ये ग्रुप डेटा रिलेटेड है, यहाँ पे इसके बाद वापस एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा ऑफ व्हाट CF ऑफ लेस देन टाइम. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज दिए, वी सी द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी. वी सी इट इज 70 दिया है, 120 दिया है, बाद में 90 दिया गया है. उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 150. 150 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो दिया है वो है 100 एंड लास्ट वैल्यू जो दिया है वो है 70. सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस वी नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ व्हाट CF. तो CF का वैल्यू, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट वैल्यू 70 ही रहेगा. अब 70 के बाद मेरा नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 120. तो 70 प्लस 120 मतलब ये हो जाएगा 190. 190 प्लस 90 किया तो ये हो जाएगा एज व्हाट 280. अब 280 प्लस ये करना है तो ये हो जाएगा एज व्हाट 430. मतलब 280 प्लस 150 किया तो ये हो जाएगा 430, प्लस 100 किया तो ये हो जाएगा 530. 530 के साथ 70 ऐड किया तो वी गेट द आंसर एज व्हाट 600. सो विद दिस वी गेट वैल्यू ऑफ व्हाट n व्हिच इज इक्वल टू क्या आएगा 600. अब क्वार्टाइल ढूंढना है तो पहले ना खाली बेसिक कंडीशन n/4 क्वार्टाइल मतलब उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके तो ये हो जाएगा 600 अपॉन क्या आएगा 4. सो वी गेट द वैल्यू एज व्हाट 150. ये जनरल मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या आएगा 1n/4 हुआ. मतलब ये फर्स्ट क्वार्टाइल 150 है. तो फर्स्ट क्वार्टाइल कहां पे लाई कर रहा है वो हमें देखना है. सो 150 एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा ये वैल्यू देखते हैं. सो 150, ये 70 है, ये 190 है, तो 150 विल लाई अंडर विच कैटेगरी, तो मैं बोलूंगा ये कैटेगरी में लाई करेगा. सिंस ये कैटेगरी में वो लाई करेगा वी मार्क दिस एज व्हाट Q1. एंड वैसे ही यहाँ पे हम ढूंढ लेते 3n/4 का वैल्यू. सो यहाँ पे 3 into 600 अपॉन क्या लिखता हूं 4 विच इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 3
into 600 मतलब 1800. 1800 divided by 4 करेंगे, so we get the answer as what? 450. So अब 450 कहाँ पे lie करता है? We check that value. यहाँ पे 430 है, ये 530 है, तो 450 will lie in this category. So इसको mark कर देते हैं as what? Q3 class. तो with the help of this we write यहाँ पे 150. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक condition, that is Q1 lies in the class interval. तो क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पे? 1700 से 1900. एंड वैसे ही ये जो 450 आया, तो ये 450 के लिए हमने Q3 मार्क किया, ये Q3 मार्क किया, तो उसका क्लास इंटरवल लिखते. सो वी राइट ओवर हियर Q3 lies in the interval, that is 2300 to 2500. ठीक है, तो ये इंटरवल मार्क किया. अब ये इंटरवल के लिए, अभी Q1 के लिए वी राइट फ्यू ऑफ द वैल्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड. तो मैं लिखता हूं यहाँ पे L1 का वैल्यू, मतलब मैं बोलूंगा जो मेरा क्लास का लोअर लिमिट है दैट बिकम्स व्हाट? माय वैल्यू ऑफ L1, एंड जो अपर लिमिट है दैट बिकम्स माय वैल्यू ऑफ व्हाट? L2. सो यहाँ पे L1 लिखा एज व्हाट? 1700, यहाँ पे लिखा L2 एज व्हाट? 1900. ये वैल्यू लिखा. उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका CF का वैल्यू. सो CF का वैल्यू लिखते वक्त, तो यहाँ पे CF मतलब मैं बोलूंगा ये Q1 के जस्ट ऊपर जो क्लास है, तो ये वैल्यू क्या है? तो मैं लिखता हूँ एज व्हाट? 70. एंड मुझे लिखना है उसका वैल्यू ऑफ व्हाट? F, दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी जो लिखना है वो तो खाली क्वार्टाइल 1 क्लास का ही लिखना है, मतलब Q1 का ही. तो फ्रीक्वेंसी क्या है? तो मैं देखता हूँ यहाँ पे इट इज व्हाट? 120. सो जैसे हमने Q1 के लिए लिखा, सेम वे वी राइट द कंडीशन फॉर Q3 के लिए. सो Q3 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं L1 का वैल्यू. So Q3 के लिए the lower limit over here is what? 2300. Then L2 का value over here, that is upper limit is what? 2500. फिर मुझे लिखना है उसका CF का वैल्यू. अरे Q3 के लिए CF क्या है? तो मैं बोलूंगा Q3 के जस्ट ऊपर क्या वैल्यू है? तो 430 है. So we write over here as what? 430. एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेगी ऑफ व्हाट? क्वार्टाइल 3 क्लास, जिसका वैल्यू क्या है? 100. सो यहाँ पे हमने ये सारे वैल्यूज लिस्ट किए. अब ये वैल्यूज लिस्ट करने के बाद वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ व्हाट? Q1 एंड वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ व्हाट? Q3 एंड वी राइट दिस ओवर हियर. सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज Q1 इज इक्वल टू, सो Q1 का वैल्यू इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आई राइट इट एज व्हाट? L1 प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज N/4 माइनस CF इनटू मैं लिखता हूँ L2 माइनस L1 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? F. बट होल डिवाइडेड बाय मतलब ये खाली प्लस के ये पार्ट तक ही है. सो यहाँ पे अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए तो वी गेट द आंसर फॉर दिस वैल्यू एज व्हाट? 1700 प्लस IN/4, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा N/4, क्योंकि I का वैल्यू 1 है तो 1N/4. अरे N/4 का वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया व्हिच इज व्हाट? 150. सो ये 150 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके माइनस CF, तो वी राइट करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ CF जिसका वैल्यू क्या है? 70. तो हम यहाँ पे 70 लिखते हैं इनटू ये हो जाएगा एज व्हाट? 1900 माइनस 1700 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 120. तो यहाँ पे आ जाएगा एज व्हाट? 120. So we write it as 1700 प्लस ये 1700 लिखा प्लस अभी इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस आता है as what? 80 ब्रैकेट, इसका डिफरेंस आता है as what? 200. यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है? 120. सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं. सो ये हो जाएगा 80 into 200. सो वी कैलकुलेट 80 into what? 200. सो ये जो डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? 120. सो वी से आंसर फॉर दिस इज व्हाट? इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट द आंसर एज 133.3333 रिकरिंग आ रहा है. सो ये वैल्यू और ये वैल्यू को ऐड करेंगे, सो वी गेट द आंसर एज व्हाट? 1700 प्लस 133.333. सो ये हो जाएगा 1833.333 रिकरिंग. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट? Q1. सिंस मुझे Q1 का वैल्यू मिल गया, अब मैं ढूंढता हूं वैल्यू ऑफ व्हाट? Q3. एंड Q3 के लिए ऑलरेडी हमने कंडीशन नोट डाउन कर दी है. सो ये भी Q3 का वैल्यू भी स्टार्ट ओवर हियर एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं Q3 इज इक्वल टू, ठीक है. तो Q3 का वैल्यू अब यहाँ पे वापस ये हो जाएगा 1 L1 प्लस ब्रैकेट, इधर मुझे लिखना होगा एज व्हाट? 3N/4. जैसे हमने यहाँ पे N/4 लिखा था वैसे अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3N/4, क्योंकि ये क्वार्टाइल 3 है, माइनस CF इनटू L2 माइनस L1
डिवाइड बाय क्या लिखूंगा f, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सो यहाँ पे L1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एज व्हाट 2300 प्लस यहाँ पे 3n/4 का वैल्यू VC 3n/4 का वैल्यू जो है वो है 450, तो 450 सब्स्टिट्यूट करें, सो यहाँ पे लिखा 450 माइनस यहाँ पे CF, तो CF का वैल्यू क्या लिखा हमने 430, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट 430 इनटू यहाँ पे L2 माइनस L1, तो L2 का वैल्यू है 2500, L1 का वैल्यू है 2300, सो ये हो जाएगा 2500 माइनस 2300, ये वैल्यू आ गया। सो यहाँ पे हम देखते हैं 2500 माइनस व्हाट 2300 डिवाइड बाय f, सो ये f का जो वैल्यू है वो f का वैल्यू है 100, तो ये 100 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो गया 100, सो ये हो जाएगा 2300 प्लस इसका डिफरेंस आ जाएगा 20, इसका डिफरेंस जो है वो आ जाएगा एज व्हाट 200, सो यहाँ पे लिखता हूं 200 अपॉन ये आ जाएगा 100, सो ये दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो वी सेड इज 2300 प्लस यहाँ पे 20 इंटू 2 देखते हैं, तो 20 इंटू 2 जो है वो हो जाएगा एज व्हाट 40, सो ये हो जाएगा 2340, सो ये मुझे मिल गया वैल्यू ऑफ Q3। यहाँ पे हमने जो ढूंढा था वो Q1 का वैल्यू था। अब क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया था वैल्यू ऑफ व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ढूंढना है, तो यहाँ पे लास्ट में we need to substitute the values over here in the formula, that is coefficient of, हमें लिखना है what QD, so we write it as Q3 minus what Q1 upon Q3 plus क्या आएगा Q1, so जब Q3 का वैल्यू मुझे मिला as 2340 माइनस मैं इसको लिखूंगा 1833.333 अपॉन 2340 प्लस 1833.333, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ दिस, ये डिफरेंस जो हमें देखना है वो है ऑफ 2340 माइनस 1833.333, सो इसका डिफरेंस आ रहा है व्हाट 506.667, 506.667, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है दैट इज 2340 प्लस 1833, तो इसको ऐड करते तो 2340 प्लस 1833.333 कैलकुलेट करेंगे, सो द एडिशन ऑफ दिस कम्स आउट टू व्हाट 4173.333 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखता हूं 4173.333, ठीक है। अब ये नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा ऑफ व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे एज व्हाट 506 डिवाइड बाय 667 अपॉन 4, सॉरी मैं बोला 506 आएगा 0.667 आएगा, इसको डिवाइड करना है बाय व्हाट 4173.333, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ दिस कम्स आउट टू व्हाट 0.1214 आ रहा है, सो वी राइट इट एज व्हाट 0.1214, ठीक है। विद दिस we have calculated value of what coefficient of quartile deviation, and we end this question. We make a note of this.
So we start with question number 10. So question given over here is from the following data calculate the quartile deviation and its coefficient बोला है. टेबल में वैल्यू दिया गया है एज इन इयर्स एंड ब्रैकेट में लिखा गया है लेस देन 10, 20, 30, 40. उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ पर्सन. सो आई राइट ओवर हियर टेबल में जो वैल्यू दिया है वो दिया गया है एज इन इयर्स, बट यहां पे टेबल में ही उन लोगों ने लिख के दिया है लेस देन. When they say less than this way, इसका मतलब होता है सारे वैल्यूज लेस देन है. सो यहाँ पे लेस देन बोला है 10, 20, 30 एंड 40. जब मैं ऐसा देखता हूं यहाँ पे तो 10, 20, 30, 40, तो ये 10, 20, 30, 40 जब लिखा जाता है ना तो ऐसा लगता है कि ये सिंगल डेटा है. मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्वेश्चन देख के ऐसा लग सकता है दिस इज क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन व्हाट डिस्क्रीट, बट एक्चुअल में जब यहाँ पे उन लोग ने वर्ड यूज किया लेस देन, इसका मतलब लेस देन 10 हुआ, फिर लेस देन 20 हुआ. अरे लेस देन 20 में मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो लेस देन 10 वाले वो भी काउंट हो जाएंगे. फिर लेस देन 30 बोला मतलब उसमें लेस देन 10 और 20 दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा. सो यहाँ पे ये जो एक्चुअल में दिख रहा है कि ये डिस्क्रीट डेटा है, एक्चुअली वो डिस्क्रीट डेटा नहीं है. एक्चुअली ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाट कंटीन्यूअस डेटा. सिंस यहाँ पे गैप है, जो गैप है वो 10-10 का गैप है, सो वी प्रिपेयर वन एक्स्ट्रा कॉलम ओवर हियर कॉल्ड एज व्हाट CI. सो यहाँ पे ये 10, 20, सो ये हो जाएगा 0 to 10, मतलब लेस देन 10 बोला ना तो 10-10 का गैप है, तो वी राइट इट एज 0 to 10. फिर यहाँ पे है वैल्यू 20, सो वी राइट इट एज व्हाट 10 to 20. फिर लिखेंगे 20 to 30 एंड 30 to क्या लिखूंगा 40. ये वैल्यूज लिखेंगे क्लास इंटरवल. फिर उन लोगों ने जो नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन में दिया गया है वो एक्चुअल में वैल्यू हो जाएगा ऑफ व्हाट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट हमें यहाँ पे लिखना है एज व्हाट नंबर ऑफ पर्सन शुड रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी. So with the help of those cumulative frequency का value, we write over here what f, that is frequency का value. So I will say मेरा जो first value है वो same to same रहेगा, that is what, तो मैं बोलूँगा 40D रहेगा. जो मेरा second value जो मुझे टेबल में दिया गया है वो टेबल में वो value दिया गया है what 36. So वो 36 actual में क्या है, तो 36 में ये 14 लोग को भी इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ पे आई विल से माय फ्रीक्वेंसी का वैल्यू विल बी 36 माइनस व्हाट 14. सो मेरा फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एज व्हाट 22. सो मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या आएगा 22, बिकॉज नंबर ऑफ पर्सन जो उन लोग ने वहां पे लिख के दिया है वो एक्चुअल में नंबर ऑफ पर्सन नहीं, वो एक्चुअली क्या है, इट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. एक्चुअल में वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, बट हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू लिखना पड़ेगा. क्योंकि जब मैं बोलता हूँ लेस देन 20, मतलब वो लेस देन 20 में लेस देन 10 वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, सबट्रैक्ट किया. दैट इज 36 में से 14 गया तो 22 आ. अब नेक्स्ट वैल्यू जो दिया गया है वो है 64, बट एक्चुअल में वो 64, तो मैं बोलूंगा वो 64 में से क्या आएगा 36 माइनस हो जाएगा. सो व्हेन वी डू 64 माइनस 36 वी गेट द आंसर एज व्हाट 64 माइनस 36, सो वी गेट द आंसर एज व्हाट 28. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 28 एंड उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 100. सो 100 में से 64 चला जाएगा. व्हाट इज 100 माइनस 64, सो वी से 100 माइनस 64 का वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 36. अब इसके बाद मैं बनाऊंगा कॉलम ऑफ व्हाट CF, जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पे CF ऑफ लेस देन टाइप. सो यहाँ पे जब मैं ये लिखता हूँ ये हो जाएगा 14, 14 प्लस 22 ये हो जाएगा 36, 36 प्लस ये तो ये हो जाएगा 64, 64 एंड 36 ये हो जाएगा 100. सो यहाँ से मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिल गया n. सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे n इज इक्वल टू 100. अब मुझे उन लोगों ने ढूंढने बोला है क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, मतलब मुझे Q1 एंड Q3 का वैल्यू चाहिए. एंड इन ऑर्डर टू गेट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ n/4 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इन ऑर्डर टू गेट व्हाट Q1 का क्लास इंटरवल, एंड यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं 3n/4 का वैल्यू. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे n/4 लिखा, यहाँ पे 3n/4 लिखा. सो पहले n ये लिखता हूँ 100 अपॉन 4 तो ये हो जाएगा 25. यहाँ पे 3 into n/4. अब मेरे को तो n/4 का डायरेक्ट वैल्यू है ना, तो मैं यहाँ पे n/4 का डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकता हूँ. तो 3 into डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 25 which is what 75. या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं 3 into 100, 300 बोलेंगे, 300 डिवाइड बाय 4 किया तो भी 75 आता है. सो यहाँ पे दो वे है उसको कैलकुलेट करने का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे. सो ये देगा 25 एंड ये देगा 75. सो ये 25 एंड ये 75 की मदद से अब हम मार्क करते हैं कि वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है. दैट इज माय वैल्यू ऑफ व्हाट
Q1 and what Q3. So 25, so 25 comes under this category, so I mark this as what Q1, and 75, so I mark this as what Q3. So मैंने Q1 and Q3 को mark कर दिया. So अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q1 lies in the interval. तो इन द इंटरवल क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा 10 to 20, तो ये हो जाएगा 10 to 20. एंड यहां पे लिखता हूं Q3 lies in the interval. सो Q3 का इंटरवल क्या है? तो मैं देखूंगा यहां पे वैल्यू दिया है, तो मैं लिखता हूं 30 to what 40. तो ये हो जाएगा मेरा वैल्यू 30 to what 40. So with the help of this we get now value of what L1 and L2 for what my Q1 class. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ L1 which is equal to what 10, L2 is equal to क्या आएगा 20. फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे CF. अरे तो CF का वैल्यू क्या आएगा? जो मेरा Q1 के क्लास के ऊपर जो वैल्यू है तो वो हो जाएगा as what 14. एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा as what F, that is frequency of Q1 क्लास जिसका वैल्यू है 22. ठीक है, तो ये वैल्यू नोट डाउन किया. सो अब यहाँ पे उसके बाद हमें Q3 के वैल्यू ढूंढने, तो Q3 के लिए L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30, L2 का वैल्यू हो जाएगा 40. अब CF लिखना है फॉर Q3 ऑल्सो. सो Q3 के लिए CF का वैल्यू मतलब उसके जस्ट ऊपर क्या वैल्यू, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो है 36. जो वैल्यू दिया गया है वो है 36 एंड अब उसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं दैट इज आल्सो व्हाट 36. तो ये वैल्यू लिखा आपने. सो अब एक बार ये सारे वैल्यूज लिख दिए, अब हम उसका जनरल फार्मूला लिखेंगे. वो जनरल फार्मूला लिखने के बाद वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ व्हाट Q1 एंड Q3. सो QI ये मेरा जनरल फार्मूला हो गया, जहां पे मैं लिखूंगा QI इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे L1 प्लस वी राइट इट एज IN अपॉन 4 माइनस CF इनटू L2 माइनस L1. ये आ जाएगा. सो यहाँ पे ये कंडीशन में एंड इसके नीचे आ जाएगा एज व्हाट F. ये कंडीशन में अभी I की जगह पे जब Q1 ढूंढना है तो हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड जब Q3 ढूंढना है तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड इधर भी 3 एंड 1 रिस्पेक्टिवली सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो अब मैं ढूंढ रहा हूं यहाँ पे वैल्यू ऑफ व्हाट Q1. सो L1 का वैल्यू फॉर Q1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस इधर आ जाएगा 1n/4 एंड n/4 का वैल्यू हमको मिल जाएगा एज व्हाट 25 माइनस CF. उसका CF का वैल्यू क्या है, तो मैं लिख रहा हूं एज 22. L2 minus L1. So now L2 minus L1 जो है L2 का वैल्यू है व्हाट 20 माइनस L1 मतलब 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी. सो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है हमको 22. सॉरी यहाँ पे CF सब्स्टिट्यूट करना था, मैंने CF का वैल्यू मुझे 14 सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने 22 सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो यहाँ पे रिप्लेस किया बाय व्हाट 14. ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 प्लस अच्छा 25 माइनस 14 करेंगे तो ये हो जाएगा 11. 20 माइनस 10 किया तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाय क्या आएगा 22. ये आ गया 10 प्लस अब यहाँ पे इट इज 11 1 और ये क्या आएगा 2 2 1 ये क्या आएगा 5 तो इसका आंसर आ रहा है 5. सो 10 प्लस 5 मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है व्हाट 15. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट Q1. सिंस ये Q1 का वैल्यू है अब मैं ढूंढता हूँ वैल्यू ऑफ व्हाट Q3. सो Q3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर Q3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज लिख दी है. ठीक है, तो यहाँ पे rather than writing Q3 over here मैं यहाँ पे ही उसके सामने ही Q3 के वैल्यूज लिख रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे भी Q1 लिखा है एंड ऐसे Q3 लिखा है, तो सेम में हम यहाँ पे Q1 कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे Q3 कैलकुलेट करेंगे. सो Q3 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा Q3 में सबसे पहला वैल्यू जो है वो है 30 प्लस अब मेरा फॉर्मूला के हिसाब से वहां पे आ जाएगा 3n/4 का वैल्यू. सो व्हाट इज माय 3n/4 का वैल्यू, मैं बोलूंगा 3n/4 क्योंकि यहाँ पे I की जगह पे 3 आएगा. सो 3n/4 का वैल्यू है 75. सो ये 75 वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस यहाँ पे आ जाएगा एज व्हाट 64. क्यों 64 आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे माइनस CF एंड CF का जो वैल्यू है वो है 64. सॉरी यहाँ पे मैंने 64 लिखना है क्योंकि Q3 इसके जस्ट ऊपर तो इट वाज 64 वैल्यू, तो यहाँ पे 64 लिखना था. सो अब यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट 64. सो ये 64 लिखा. अब इसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे 40 माइनस 30 एंड डिवाइड बाय व्हाट द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 36. सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एज व्हाट 36. सो व्हाट इज दिस वैल्यू इक्वल टू, तो मैं लिखूंगा 30 प्लस अच्छा 75 में से 64 गया. सो ये मुझे आंसर देगा 11. इसका वैल्यू कैलकुलेट किया ये मुझे आंसर देगा 10. ये हो जाएगा 36. ये हो जाएगा 30
प्लस 11 इंटू 10 किया तो 11 इंटू 10 ये हो जाएगा एज व्हाट 110 अपॉन 36. सो 110 डिवाइड बाय 36. ठीक है, तो पहले यहाँ पे 110 अपॉन 36 लिखते हैं. ये हो जाएगा 30 प्लस, अब इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, वी गेट द आंसर एज 3.05555. So we write it as 33.0555. So we round off that value to 33.056 बोल सकते हैं. इसको भी राउंड ऑफ किया तो अप टू 2 डेसिमल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ as what 6. तो ये वैल्यू हो गया. ये वैल्यू मुझे मिल गया ऑफ Q3. सिंस मुझे Q1 पता चल गया, अभी Q3 पता है, अब मुझे ढूंढना है क्वार्टाइल डिविएशन. लास्ट पार्ट है, दैट इज क्वार्टाइल डिविएशन के हिसाब से Q3 माइनस Q1 होता है अपॉन 2. सो हम लिखेंगे यहाँ पे 33.06 माइनस 15 डिवाइड बाय व्हाट 2. इसका डिफरेंस निकाला तो हमको मिलेगा 18.06 अपॉन 2. वैल्यू फॉर दिस इज 9.03. ये ढूंढ लिया. एंड कोएफिशिएंट पूछा है. सो कोएफिशिएंट के लिए इट इज कोएफिशिएंट ऑफ QD व्हिच इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1. ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट इज 33.06 माइनस 15 अपॉन 33.06 प्लस 15. ठीक है, तो ये हो जाएगा 18.06 एंड ये हो जाएगा 48.06. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें इसका वैल्यू देखना होगा कि क्या आ रहा है. सो ये हो जाएगा 18.06 डिवाइड करेंगे बाय व्हाट 48.06. सो इसका वैल्यू आता है व्हाट 0.3757. सो यहाँ पे 0.3757 है, उसके बाद भी 8 आ रहा है. सो कहना से इसको मैं अगर राउंड ऑफ कर देता हूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एज व्हाट 8. सो ये वैल्यू मुझे मिल गया है कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट क्वार्टाइल डिविएशन. विद दिस सम इज ओवर. We'll make a note of this, and with this we end this section. Thank you.